we should mention, भाई डिनोमिनेटर में sin x आ रहा है, so sin x should not be equal to 0. Correct? डिनोमिनेटर में cos square x by 2 आ रहा है, so cos x by 2 should not be equal to 0. तो ये है डोमेन, राइट? डोमेन का मतलब है कि भाई हम वो सारे इनपुट्स इग्नोर करेंगे जिसके लिए इक्वेशन इनवैलिड हो जाती है, नॉट डिफाइंड हो जाती है. नाउ आफ्टर डूइंग दिस यू आर फ्री टू क्रॉस मल्टीप्लाई, और इनफैक्ट यू कैन कैंसिल ऑल्सो अगर तुमने नॉट इक्वल टू 0 लिख दिया तो. बट चलो फिलहाल हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, और दिस विल बिकम sin x प्लस 2 एंड दिस 2 cos square x by 2, अगर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 cos square x by 2, ये टर्म कहीं सुनी लग रही है? 2 cos square x by 2. व्हाट? क्या बोल रहा है? I was talking about 2 cos square x by 2. I think तुम sin x को एक्सपैंड कर रहे हो. नहीं, 2 cos square x by 2 is 1 plus cos x, डबल एंगल फॉर्मूला. और ये जो डिनोमिनेटर में sin x था, इसको हम लोग राइट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो दिस विल बिकम माइनस sin x. बताओ, व्हाट अबाउट दीज 2 स्टेप्स? यू अंडरस्टूड? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, लेट्स मल्टीप्लाई. इनको मल्टीप्लाई करते हैं. मल्टीप्लाई में क्यों कर रहा हूं? बिकॉज लुक, वी आर गेटिंग sin x into cos x. So sin x into cos x, और क्या आएगा भाई? sin x plus sin x plus 2 cos x, correct? Plus 2 cos x and equals to minus sin x. सो आई थिंक अब तक तुमने रियलाइज कर लिया होगा कि इस माइनस साइन को शिफ्ट करेंगे, एंड वी हैव sin x into cos x in this equation, and when you will shift minus sin x to left hand side, this will become 2 sin x plus 2 cos x. You take 2 common, 2 times sin x plus cos x and plus 2 equals to 0. Now everybody who is having any difficulty in type 5, look, we ended up having an equation which is similar to what we studied in type 5. An equation which involves sin x into cos x, sin x plus cos x, or sin x minus cos x. So what was the process? कैसे हम इस equation को solve करते हैं भाई? What was the trick? Last lecture में जो हमने cover किया. Yes. sin x plus cos x को हमें कुछ assume करना है. So let sin x plus cos x equals to something, let's say v assume किया. तो sin x plus cos x को हमने v assume किया. Look, we are not squaring in the given equation. No, ये equation squaring नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे squaring कर रहे हैं. एंड वहाँ यहाँ पे हम स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? यू नो द रीजन. अद्वैक, हम यहाँ पर स्क्वायरिंग क्यों करते हैं? क्या है अद्वैक? है कि नहीं है? यस, बिकॉज हमको स्क्वायरिंग करने से sin x into cos x की टर्म यहां पर मिलती है. In terms of v, let's see, sin square x plus cos square x, directly it becomes 1 plus 2 sin x into cos x equals to v square. So what is the value of sin x into cos x? Sin x into cos x equals to v square minus 1 by 2. So we have these two substitutions. Sin x plus cos x को हम v substitute करेंगे, और your voice broke in between.
ऐसा कुछ हुआ क्या? कनेक्शन? ओके, I cannot hear you, Advik, no. So sin x plus cos x और sin x into cos x, ये दोनों वैल्यूज उठा के हम प्लग इन करते हैं इन इक्वेशन 1. ऑलराइट, सो व्हाट डू वी गेट? ओके, v square minus 1 by 2 in place of sin x into cos x plus 2 times sin x plus cos x, ये हो गया v और plus 2 equals to 0. So we're going to have a quadratic in v. Let's say after simplification, what do we get? We will get v square plus 4v. And look, plus 4 minus 1 plus 3 equals to 0. And this quadratic must have two roots. और दोनों रियल है, बहुत अच्छी बात है. दोनों रूट्स हमारी क्या आ रही हैं? -1 and -3. That's correct. So -1 and -3 are two roots. ये v की वैल्यूज हैं. v equals to -1 और v equals to -3. And once you got the values of v, तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट लेक्चर में भी that it will appear to be an easy option कि हम v की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में डाल दें. Because from here you will, yes I can hear you, 2 sin x into cos x will become sin 2x and sin 2x equals to something, directly answer आ रहा है. But you should remember that we got second equation after squaring. So when you square, when you increase the degree of the equation, you will get some extra solutions. You have to avoid squaring. But you could not, because इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए करना ही पड़ा. But if you will substitute the value of v in the first equation, you will never get extra solutions because ये इक्वेशन में अभी तक स्क्वायरिंग नहीं हुआ है, right? So v equals to, हम अगर -1 रखते हैं या v equal to -3 रखते हैं, so type 3 sin x plus cos x equals to -1 और sin x plus cos x equals to -3. इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने से हमको आंसर मिलेगा. बट एक्चुअली क्या? यस, दिस इज नेवर पॉसिबल. नेवर मीन्स फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x, दिस इज नॉट पॉसिबल. व्हाई आई एम सेइंग दिस? यस सदगुरु, व्हाई आई एम सेइंग दिस? माइनस 2 to 2 -2 to 2 नहीं है बेटा. sin s प्लस cos s की रेंज भूल गया है? हाँ, तो -√2 to √2. हाँ, इक्वेशन 1 में तो डाला हमने. यहां रखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन में सेटिस्फाई नहीं करेगा. यही तो है, v वाली इक्वेशन तो है, सेटिस्फाई तो करेगी. क्या बोलना चाहते हो? sin x plus cos x cannot be equal to -3 and the reason is the minimum value of sin x plus cos x is -√2. एंड इफ यूर सेइंग कि हम सेकंड इक्वेशन डाल के चेक कर सकते हैं तो कुछ समझ में आता है. यहां तो सेटिस्फाई करेगा ही भाई. ये वही इक्वेशन तो है, v स्क्वायर -1 by 2 plus 2v plus 2. यहां तो सेटिस्फाई करेगा ही. यहां कैसे नहीं करेगा? sin x plus cos x cannot be equal to -3. So now we have type 3 equation and only one equation. Sin x plus cos x equals to -1. How do we solve this equation? इस इक्वेशन को हम सॉल्व कैसे करते हैं भाई? हाँ, तो यहां पर हम टाइप 3 प्रॉब्लम्स में √a² प्लस b स्क्वायर से डिवाइड करते हैं. चलो डिवाइड कर देते हैं. सो सिंस वी हैव a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 1, सो √a² प्लस b स्क्वायर √2. सो 1 by √2 sin x प्लस 1 by √2
cos x इक्वल्स टू -1/√2। बोलो क्या बोल रहे हो यार? फर्स्ट इक्वेशन में तो सब्स्टिट्यूट किया है और क्या किया है? v की वैल्यू -1 रखी है यहां पर। अरे उसके बाद कुछ नहीं किया, आंखें तो खोल के देखो। फर्स्ट इक्वेशन तो है ये, और क्या है? कमाल है। क्या होगा? माइनस तैयार करते सेटिस्फाई हो जाएगा। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा हमारा 9 - 1 8/2 4। साइन एक्स और कॉस एक्स का प्रोडक्ट 4 आ गया। बात बन गई तुम्हारी। चलो बात बन गई तो अच्छी बात पक्की होगी तुम्हारी। चलो बधाई हो। अभी तुम कर दे बात बन गई मेरी। किससे बात बन गई तुम्हारी? सेकंड से। कैसे बन जाएगी यार? साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 4 हो सकता है। 2 से इधर चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। साइन 2x की वैल्यू 8 हो सकती है? नहीं हो सकती ना। एंड दोज हु आर गेटिंग डिस्कनेक्टेड प्लीज देखो, यहां पर एक स्टेप तो लिखा है। क्या हो गया इसमें? इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करवा समझ नहीं। अरे इक्वेशन 1 ही तो लिखी हुई है यहां पर। क्या लिखा हुआ है? टाइप 3 में √(a²+b² से हम डिवाइड करते थे। √2 से डिवाइड किया और प्रेफरेबली हमारे पास दोनों ऑप्शन होते थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी होता है राइट, बट हम प्रेफर कौन सा करते हैं? साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी। सो ये क्या बन जाएगा? कॉस x - π/4। सतगुण कहां है तेरे सारे गुण हैं? -1/√2 को cos π/4 बोल रहे हैं। नहीं कर सकते हैं ना। गुण के बजाय सारे अवगुण आते आ रहे तेरे अंदर हैं? पिटेगा। -1/√2 cos -थीटा cos थीटा होता है। बहुत सालों पहले पढ़ा था ना तुमने, 20-30 साल पहले, है ना? कहते हाँ, -1/√2 सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल cos 3π/4 लेंगे ना, cos 135 डिग्रीज इज -1/√2। और अब इस इक्वेशन का सोल्यूशन cos x इक्वल्स टू cos थीटा। क्या आएगा इसका सोल्यूशन भाई? व्हाट? अच्छा फाइनल आंसर बता रहे हो क्या? अच्छा हाँ ठीक है। 2n पाई प्लस माइनस 3π/4। और अब यहां से दो टाइप के आंसर्स निकलेंगे। जब हम प्लस साइन लेंगे तब आएगा 2n पाई 3π/4 प्लस π/4 प्लस पाई। और जो दूसरा आंसर है वो आएगा तुम्हारा माइनस साइन लेने पर। क्या आएगा भाई? -π/2। But don't forget, we have written something over there because this was not the original equation. Original question ये था. So sin x should not be equal to 0. Cos x/2 should not be equal to 0. तो ये ध्यान से आंसर, फाइनल आंसर लिखने से पहले ध्यान दे दो इस बात पर। तो क्या लगता है तुम्हें? क्या 2n पाई प्लस पाई, 2n पाई प्लस पाई का मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई पर साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन फॉर ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई? 0 हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। अरे किसी भी पाई का मल्टीपल हो, 180, 360, 0 कुछ भी ले लो, साइन की वैल्यू 0 होती है भाई। व्हाट अबाउट cos x/2? इनफैक्ट cos x/2 भी 0 हो रहा है। देखो ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 किया तो क्या हो गया? ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 cos 0 होता है। तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, व्हाट अबाउट सेकेंड पार्ट, दिस वन, 2n पाई माइनस π/2। नाउ साइन ऑफ 2n पाई माइनस π/2। भाई 2n पाई माइनस π/2 का मतलब क्या हुआ? -π/2
3π/2 ऐसे एंगल्स, राइट? इन सभी एंगल्स पर साइन की वैल्यू क्या होती है? -1, तो नॉट इक्वल टू 0। और अगर तुम इसका हाफ करोगे, लाइक -π/2 का हमने हाफ कर दिया -π/4, या फिर हमने 3π/2 का हाफ कर दिया 3π/4, इन सब पर कॉस की वैल्यू भी 0 नहीं होती है। सो वी हैव ओनली वन पॉसिबल आंसर, एंड दैट इज दिस वन। I think my headphone got disconnected. Cannot hear you. Anyways, you note it down, huh? I'll check. क्या हो रहा है? Press 3. नहीं भी नहीं, रुक जाओ. Wait. Freeze करो उसको. Freeze करो. Don't press 3. हाँ. क्या हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया. 2 मिनट्स, हाँ, तुम लोग नोट करो, मैं आता हूँ। हेलो यार, अभी थोड़ी देर तुम्हें चैट बॉक्स यूज़ करना पड़ेगा। एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया शायद, ये इसलिए नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बताओ मुझे, इसमें जो सोल्यूशन है इसमें कोई डाउट है किसी को तो मुझे बताओ। आवाज़ आ रही है? नो? ओके, ग्रेट। यस, ओके, ऑलराइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग जरा ट्राई करो एक बार अपने आप, है ना? ट्राई करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। थर्ड क्वेश्चन में देखो फिर से एक बार हमको, अभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लिखा हुआ है और साथ में देखो साइन 2x है। ये यार if any one of the conditions are not satisfying, जो conditions हमने रूट्स पे रखी थी,
डोमेन की जो कंडीशंस थी, कंडीशन थी साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, कॉस एक्स बाई टू इक्वल इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर इनमें से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं होती तो हमें उस सोल्यूशन को इग्नोर करना होगा। These are not important points. Look, I'm just solving the equation. I cannot repeat everything which I have said, right? 5 minutes back, if I have said anything, and if you ask me to repeat every word, I cannot repeat it. But I can repeat the solution for you, right? Yes, that's what I'm doing. All right, try question number 3 and tell me the answer. Then we'll match. अगर तुम्हारा ये question solve हो गया, that means you understood type 4 also, and we can move to type 5. So I'll wait for 2 minutes. Give me your answer. By the time I'll try to connect again. मैं ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट।
हेलो, यस, सो इट्स नॉट वर्किंग यार, चैट पे लिखो भी। 2n पाई और 2n पाई माइनस पाई बाई टू, 2n पाई माइनस पाई बाई टू, 2n पाई माइनस पाई बाई 4 और √13/2, पता नहीं क्या क्या लिख रहा था, अजीब सा आंसर। तो आओ देखते हैं एक्चुअल आंसर क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में यू विल सी आंसर्स। ये रिपीटेड आंसर है, नो नो नो, आई थिंक इसमें कुछ मिस्टेक है। थर्ड का आंसर, सेकंड का आंसर हमारा सही है राइट, हाँ, 2n पाई माइनस पाई बाई टू। रिमेंबर ये जो आंसर था हमारा 2n पाई माइनस पाई बाई टू, यस, सो दिस आंसर इज करेक्ट। थर्ड का आंसर एक तो 2n पाई प्लस पाई है, तो आई थिंक ये कई लोग का मैच कर रहा है राइट। आई कैन नॉट हियर यू, आई एम सॉरी, कैन नॉट हियर यू, यू हैव टू राइट ऑन द चैट बॉक्स। तो 2n पाई प्लस पाई या माइनस पाई चलेगा, हाँ ठीक है, 2n पाई माइनस पाई इज ऑल्सो फाइन, बट इफ यू आर गेटिंग 2n पाई, दिस इज अ वेरी डिफरेंट आंसर। 2n पाई क्यों आ रहा है अभी, जब देखें मैच करता है। 2n पाई का मतलब हुआ इवन मल्टीपल ऑफ पाई, यानी कि कॉसेक्स जो है वो हो गया माइनस, नहीं भाई 2n पाई सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई सेटिस्फाई करेगा इसको, इवन मल्टीपल ऑफ पाई सेटिस्फाई नहीं करेगा। सो दोज हु आर गेटिंग 2n पाई, दे आर रॉन्ग। 2n पाई माइनस पाई इज करेक्ट, या 2n पाई प्लस पाई, शवनी यस यस करेक्ट। 2n पाई प्लस पाई या 2n पाई माइनस पाई दोनों ही सही है, बट दूसरा आंसर क्या बोल रहे हो, 2n पाई प्लस पाई बाई टू। वेट, 2n पाई प्लस पाई बाई टू अगर मैं रखूंगा इसमें, फॉर एग्जाम्पल पाई बाई टू रख के देख लेते हैं, तो 12, और यस यस दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सो इफ यू आर गेटिंग odd multiple of pi, that is 2n पाई plus pi or 2n पाई minus pi, then you are correct. And the second possible answer is 2n पाई plus pi by 2. If you are getting 2n पाई plus pi by 2, that is also correct. Now guys, like Vedant J is getting 2n पाई minus pi by 4 for some reasons. 2n पाई माइनस पाई बाई 4 आंसर नहीं हो सकता है ना, पॉसिबल नहीं है। तो कुछ उल्टा सीधा कर रहे हो, उसको करेक्ट करो, तुम्हारा आंसर सही हो जाएगा। वेदांत जे, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं भाई, हमारा आंसर है 2n पाई प्लस पाई और 2n पाई माइनस पाई, यानी कि ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, और 2n पाई प्लस पाई बाई 2। काफी लोगों का ये आंसर सही आ गया है, तो मेरे ख्याल से अब इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ वी विल कम टू द लास्ट पार्ट, द लास्ट टाइप, और इसमें थोड़ी सी नंबर थ्योरी इन्वॉल्व है। ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट होते हैं, इनको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो और देखते हैं क्या है ये, यूजिंग बाउंडनेस ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, यूजिंग बाउंडनेस ऑफ sin x and cos x। और देखते हैं इसको, एक मिनट मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, 2 मिनट रुको, अगर हेडफोन लग गया तो। ये पीसी जो है अजीब हो गया है, 1 मिनट।
नहीं हो रहा यार, तुम लोग चैट बॉक्स में लिखो, ठीक है? हाँ, प्रेस 3, प्रेस 3, इसको हटा दो, फ्रीज है। यस, सो फर्स्ट क्वेश्चन जो तुम देख रहे थे, आई नो सदगुण, देयर इज अ ब्लूटूथ आइकन, आई नो, सेटिंग्स ही ओपन नहीं हो रहा है यार, पीसी जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया उसमें। ओके, तो sin 3x प्लस cos 4x, sin 3x प्लस cos 4x माइनस 4 sin 7x, काफी बड़ी सी और स्केरी सी इक्वेशन है, बट डोंट वरी, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं होगा इसको सॉल्व करना। देखो, sin 17x प्लस cos 10x, so there's a lot of terms, right? What do you think? From where should we start? Yes, I'm always there. So tell me, how should we start? Combine sin and cos terms? Obviously, we cannot combine sin and cos terms because there is no formula involved, right? Sin c plus cos t. We can involve sin to sin and cos to cos, obviously. But keeping in mind that if we are going for sum to product formulas and we are solving a trigonometric equation, it is always, important to have some terms common, some factors common. If you can factorize the equation, you will always get a solution. So, like this term, 4 sin 7x. Now 4 makes it very difficult to club this, to combine this with any of the terms. यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, right? तो इस टर्म को फिलहाल के लिए हम छोड़ते हैं. Sin 3x, look at sin 3x, and then we have sin 17x. Sin 3x and sin 17x. अब जरा दिमाग में ही एक बार डिस्कस कर लो, खुद सोच लो कि sin 3x को अगर मैं इधर शिफ्ट करता हूँ, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगाता हूँ. sin c माइनस sin d का फॉर्मूला क्या था? 2 sin c माइनस d by 2 cos c प्लस d by 2. c माइनस d करने पर देखो 17 माइनस 3 14 by 2 7x आ रहा है, विच इज गुड न्यूज. 7x, राइट? कुछ कॉमन निकलेगा. नॉट ओनली दिस, इफ यू लुक एट cos 4x एंड cos 10x, इसको मैं इधर शिफ्ट कर दूं अगर, cos c माइनस cos d इज व्हाट? 2 sin c प्लस d by 2. 10x 4x का सम by 2 अगेन 7x. तो इतनी चीजें अगर तुम्हारे दिमाग में आ गई तो वो होता नहीं है कि हमने एक बार प्रोसीड किया किसी मेथड से और फिर हमको 2-3 स्टेप के बाद पता लगा कि हम गलत जा रहे थे, फिर हम मेथड 2 पे आते हैं. तो अगर तुम इतना विजुलाइज कर लोगे तो वो टाइम सेव कर सकते हो. अब देखो हमारा काम बहुत आसान हो चुका है. आई विल शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू लेफ्ट हैंड साइड और वी कैन शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू राइट हैंड साइड. लेट्स शिफ्ट ऑल द टर्म्स टू राइट हैंड साइड. sin 17x sin 17x minus sin 3x, right? sin c minus sin d यहाँ पे लगाते हैं, and then we have minus 4 sin 7x, तो ये हो जाएगा plus 4 sin 7x, and then we have cos की terms यहाँ पे देखो cos 10x, and then this cos 4x to right hand side is minus cos 4x equals to 0. So apply sin c minus sin d and cos c minus cos d. Apply it. And we are going to get 2 cos c plus d by 2, that is 17x plus 3x 20x by 2 यानी कि 10x. So 2 cos 10x into sin 17 minus 3, जैसा हम डिस्कस किया था, 17 minus 3 14, 14 by 2 ये हो गया 7x. Then again 4 sin 7x and plus, look at this, cos c minus cos d. So cos c minus cos d का फॉर्मूला था हमारा 2 sin c plus d by 2, that is 14x by 2 7x into sin d minus c by 2. Remember इस फॉर्मूले में सेकेंड माइनस फर्स्ट होता है, right? So 4x minus 10x minus 6x by 2, that is minus 3x equals to 0. Yes, so sin 7x and sin 7x हम अब कॉमन निकाल सकते हैं. Let's take sin 7x common. Sin 7x is common. And what do we have here in this bracket? We have 2 cos 10x, 2 cos 10x. Then we have
obviously 4. We could have taken 2 also, चलो ठीक है बाद में देते हैं. And then we have sin 7x कॉमन लिया तो -2 sin 3x equals to 0. We can take common, yes, we can do 2 also, right? So from here we have sin 7x equals to 0. और तो बताएगा इसका सोल्यूशन क्या है, राइट? sin 7x equals to 0. sin 7x equals to 0 मतलब 7x equals to n pi. And that implies x equals to n pi by 7. तो एक आंसर तुम्हारा आ चुका है, राइट? x equals to n pi by 7 is fine. Now take a look at the second factor. Second factor हमारे पास क्या है? Second factor है pi by 7 is 25.7. अच्छा ठीक है, जरूरत नहीं है, अपना आंसर ऐसे लिखो. This one is our first answer. No problem of domain, nothing whatsoever, कुछ भी प्रॉब्लम है नहीं. सेकेंड फैक्टर जो लिखा हुआ है वो है 2 cos 10x and plus 4 minus 2 sin 3x. 2 कॉमन लेने के बाद थोड़ा एडजस्ट करने के बाद we will get sin 3x minus cos 10x equals to 2. It's not type 3, Vedant Sharma. It is not type 3, no. Because in type 3 equations we had same angles, sin x plus cos x, sin x minus cos x. Here we have different. देखो ना 3x और 10x लिखा हुआ है. These are not same. So अब हमारे पास एक बहुत ही स्ट्रेंज सी सिचुएशन है जहां पर साइन लिखा हुआ है, कॉस लिखा हुआ है और वो भी राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, 2 लिखा हुआ है. और हमने कभी भी ऐसे कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं किए. बट एक बार जरा ध्यान से इस इक्वेशन को देखो. देयर इज समथिंग स्पेशल. यस, यू कैन डू पाई बाई 2 माइनस थीटा, तुम साइन बना सकते हो उसको, बट फॉर व्हाट पर्पस? पर्पस क्या है हमारा? अगर हम इसको सम टू प्रोडक्ट फॉर्मूले से फैक्टराइज भी करेंगे तो राइट हैंड साइड में कोई 0 थोड़ी ना है जो हम इसको 0 से इक्वेट करके आंसर निकाल देंगे. सो कोई एडवांटेज तो मिलेगा नहीं हमको. बट मैं ये पूछ रहा हूं कि इस इक्वेशन में कुछ तो स्पेशल है. कैन एनीवन राइट ऑन दिस chat window what is special about this entire equation? No, Sadhguru. What is special about this equation? Anyone? Vatsal, Tanesh, anyone? Come on. What is special about Advait? Equals to 2. Equals to 2 is special. ठीक है. cos 10x को ब्रेक कर दें. नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं क्या करना है. मैक्सिमम वैल्यू 2. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस. लेफ्ट हैंड साइड में जो 2 टर्म्स लिखी हैं, एक टर्म साइन की है और एक टर्म कॉस की है. तुमको पता है कि साइन ऑफ एनीथिंग रियल लाइज बिटवीन -1 to 1. कॉस ऑफ एनीथिंग रियल लाइज बिटवीन -1 to 1. नाउ डिफरेंस ऑफ दीज टू, difference of these two is 2. So what do you think is special about the equation? Special इसमें ये है कि इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है और इन दोनों का डिफरेंस 2 केवल एक ही सिचुएशन में आ सकता है. वो कब आ सकता है? वो तब आ सकता है जब sin 3x equals to +1 हो और साइमल्टेनियसली cos 10x equals to -1. Otherwise this equation will never hold good किसी भी और वैल्यू के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने यहाँ पे हाफ डाल दिया तो बहुत सिंपल सी बात है कि हाफ अगर डाला हमने तो cos 10x हाफ -2 -3/2 हो जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो बहुत क्लियर सी बात है कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना अब देखो बहुत आसान हो गया. वाई? बिकॉज देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ रेंज. And that's why type 5 is called, press 3. Type 5 is called, in type 5 we see equations where we are using boundness. Boundness of sin x and cos x का मतलब हुआ जो range की boundness है. Range of sin x and cos x
is between -1 and 1. That is boundness of sin x and cos x. ये बाउंडनेस tan और cot के पास नहीं है. tan x और cot x की रेंज कुछ भी हो सकती है, राइट? ऑल रियल नंबर्स. तो साइन और कॉस की जो बाउंडनेस है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे दिखते हैं हमको. ओके, प्रेस 3. यस वेंकटेश, करेक्ट. सो साइन 3x इज 1 एंड कॉस 10x इज -1. बट अभी आंसर नहीं आ गया भाई, खुश मत हो. यहां पर अभी हम यहां तक पहुंचे हैं और बहुत ध्यान से देखो. यहां पे मैंने पहली बार इस चैप्टर में पहली बार हमने एंड लिखा है. अब तक हम हर जगह और लिख रहे थे. और या तो ये आंसर होगा या फिर वो आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा या फिर वो आंसर होगा. हम अब तक यूनियन ले रहे थे अपने आंसर्स का. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वी हैव अ सिचुएशन वेयर वी हैव टू इक्वेशंस वी नीड टू सॉल्व एंड देन वी हैव टू टेक व्हाट? इंटरसेक्शन. यस आदित्य, हमको इंटरसेक्शन लेना होगा. और इंटरसेक्शन लेने में कुछ लोगों को दिक्कत आएगी. क्यों दिक्कत आएगी? आओ देखते हैं. सो साइन 3x इक्वल्स टू 1. चलो पहले हम लोग इस इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन निकालते हैं. साइन 3x इक्वल्स टू 1. टेल मी, हाउ डू यू सॉल्व साइन 3x इक्वल्स टू 1? रिमेंबर, it's extreme value. 1 and -1 both are extreme values. So we are not going to use regular general solutions. We have a different approach. प्राप्ति, ये तुम्हारा डाउट था. So I'm again addressing this. Sin 3x equals to sin pi by 2. If you have sin 3x equals sin pi by 2, then you are not going to use that formula n pi plus -1 power n whatever. ये डायरेक्टली लिखा जाएगा 3x equals to 2n pi plus pi by 2 to avoid repetitions. जो भी repetitions आते हैं अब नहीं आएंगे. Okay? Right. So what is the value of x? x की वैल्यू यहां से आती है 2n pi by 3 plus pi by 6. But hold on, रुको अभी. एंड इंटरसेक्शन लेना होगा भाई इसका. cos 10x equals to -1, यानी कि cos 10x equals to cos pi. cos 10x equals to cos pi नहीं, एंड अभी हाँ ठीक है, वहां तक ठीक है तुम्हारा. cos 10x equals to cos pi implies 10x equals to what? Again it is not 2n pi plus minus, it is only, और यहां पर m यूज करते हैं. मैंने अभी तक इग्नोर किया, मैंने अभी तक दोनों जगह n लिया था जब तक हम यूनियन ले रहे थे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. बट अब तुम इंटरसेक्शन लेने जा रहे हो. तो इंटरसेक्शन जब तुम लेने जा रहे हो तो यहां पर जो चॉइस ऑफ वेरिएबल है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता, m भी इंटीजर है n भी इंटीजर है, बट दोनों को डिफरेंट रखेंगे. ठीक है. तो ये क्या हो गया? 2m pi plus pi. This is 2m pi plus pi, and from here the value of x will be 2m plus 1 pi by 10. Yes, it is 2m plus 1 pi by 10, where m and n both are integers. तो ये तो ठीक है, बट अभी इंटरसेक्शन ही लिया भाई हमने, हम ऐसा लिख के छोड़ नहीं सकते हैं. नाउ वी हैव टू टेक इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस. इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? कॉमन सॉल्यूशंस. जैसे मैंने तुम्हें एक सेट दिया, एक सेट में लिखा मान लो 1 3 4 5, इंटरसेक्शन विद 2 4 6. व्हाट इज द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू सेट्स? व्हाई are we taking different variables? That you will understand. ठीक है. 1 and 4. सतुन तुझे 1 कहां दिख रहा है भाई कॉमन? कमाल है, बहुत ही पारखी नजर तुम्हारी है. यस निधि, करेक्ट. 4. कुछ भी, अरे कॉमन सोल्यूशन तो केवल 4 ही आ रहा है भाई. Forgot to erase. दे दो भाई इसको, इरेजर दो, मिटा लो. चलो चलो ठीक. तो हाउ डू यू फाइंड कॉमन सोल्यूशंस? ऑब्वियसली अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कॉमन सोल्यूशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट अगर ऐसा सोल्यूशन है तो वो कॉमन सोल्यूशन कैसे निकाला जाए, अब इस चीज को ध्यान से देखो. ठीक है, मैं तुम्हें दिखा रहा हूं. हमें करना क्या होगा?
और यहाँ पे इस चीज़ का भी आंसर तो मिलेगा कि मैंने इन दोनों को डिफरेंट वेरिएबल क्यों रखा है, मैंने n यहाँ पे क्यों रखा है, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता, n भी सारे इंटीजर्स कवर करता है, m भी सारे इंटीजर्स कवर करता है, बट यहाँ पर n और यहाँ पर m रखने का रीज़न ये है कि नेक्स्ट स्टेप में हम इन दोनों को इक्वेट करने वाले हैं। 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 2n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6 इक्वल्स टू 2m प्लस 1 पाई बाई 10। क्यों भाई, इन दोनों को मैंने इक्वेट क्यों कर दिया? इन दोनों को इक्वेट इसलिए कर दिया बिकॉज देखो दिस इज अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस। तुम इनको रखोगे 0, 1, -1, -2, अलग अलग सॉल्यूशंस आते जाएंगे। दिस इज ऑल्सो अ कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस। तुम यहां पर भी m को 0, 1, -1, -2 रखोगे और अलग सॉल्यूशंस आते रहेंगे। जब हम इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं तो हम इन दोनों सेट्स में कॉमन सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, सेम आंसर निकालना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली फॉर सम वैल्यू ऑफ n एंड फॉर सम वैल्यू ऑफ m दीज टू मस्ट बी इक्वल, तभी तो कॉमन सॉल्यूशन निकलेगा। इसीलिए हम इन दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं और इक्वेट कर रहे हैं। लेट्स सिंप्लीफाई दिस। टेल मी, सिंप्लीफिकेशन के बाद ऑब्वियसली देखो पाई कैंसिल हो रहा है, टेक एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड टेल मी व्हाट डू यू गेट आफ्टर सिंप्लीफाइंग दिस, व्हाट डू यू गेट, टेल मी। पाई कैंसिल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कुछ अगर कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट करो कॉन्स्टेंट्स में, और सिंप्लीफाइड फॉर्म में इक्वेशन बताओ क्या आती है। नोबडी इज राइटिंग एनीथिंग। क्या हो भाई, इतना डिफिकल्ट है इसको सॉल्व करना? पाई कैंसिल हो गया एंड अगर मैं यहां पे एलसीएम लूंगा 6 अगर हमने एलसीएम लिया तो क्या आएगा भाई, 4n प्लस 1, और राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में होगा हमारे पास 2m प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 10। 20n इक्वल्स टू 6m, कम ऑन 2 कैंसिल कर देना, 20 बोल रहा है, यहां से ये देखो 2, 5, 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बताओ क्या आता है। Now cross multiply, okay, so 20n plus 5 equals to 6m plus 3, और सिंप्लीफाई करें इसको, देखते हैं। And after cancelling 2, you'll get 10n plus 1 equals to 3m. 10n plus 1 equals to 3m. Aditya, I don't think you are getting correct. No. This is what we get. 10n minus 3m equals to 1. Correct. This is an equation containing 2 variables. We have just one equation and 2 variables. But remember, the variables cannot take any real value. They have to take only integers. We are solving this equation for integers, right? These type of equations are called Diophantine equations. और हमारे syllabus में, JEE के syllabus में ये equations है नहीं. That's why you will never see any such question in IIT-JEE. But इसमें जो मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है वो 10th स्टैंडर्ड के लेवल की है, तो आएगा, आप अभी तक नहीं आया, कभी नहीं आएगा ऐसा नहीं कह सकते। सो वी शुड बी प्रिपेयर्ड, राइट? ऐसा मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ कि मैं अब तुम्हें ओलंपियाड लेवल की मैथमेटिक्स समझा रहा हूँ या फिर कुछ ऐसा जो बियॉन्ड जेई है, ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस आए नहीं है बट आ सकते हैं। तो बताओ मुझे, तुम इसके आगे इसको सॉल्व कैसे करोगे? ऑब्वियसली वी आर नॉट गोइंग टू यूज द हिट एंड ट्रायल मेथड, जहां पर हम n की वैल्यूज रखते जाएंगे और देखते जाएंगे कौन सी वैल्यू इंटीजर्स आ रही हैं m के लिए। वी नीड ए बेटर अप्रोच एंड दैट बेटर अप्रोच इज, देखो बहुत सिंपल सा काम है, जो यहाँ पर छोटा कोएफिशिएंट है, फॉर एग्जांपल 10 भी एक कोएफिशिएंट है, 3 भी एक कोएफिशिएंट है, विच वन यू सी इज द स्मॉलर, डिवाइड बाई दैट कोएफिशिएंट। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं m इक्वल्स टू लिखूंगा 10n प्लस 1 बाई 3, 10n प्लस 1 बाई 3।
लेट्स डिवाइड बाय 3. अब तुम कहोगे डिवाइड 3 से कैसे करें? स्वागतम का एक आंसर आ गया 7 to 5, बट वी वांट ऑल पॉसिबल आंसर्स, राइट? प्रथम इज सेइंग 2 and 7. हाँ सही बात, सेम आंसर है. तो देखो 10n plus 1 by 3 नहीं हो पा रहा है, तो मैं क्या करता हूं 10n को लिखता हूं 9n. 9n लिखने का पर्पस क्या है? जिससे ये 3 से डिवाइड हो जाएगा. इसको मैं ब्रेक कर रहा हूं ऐसा, n plus 1 and whole by 3. So now we can break this and we can write 3n plus, और इसको ध्यान रखना, n plus 1 by 3, and this is the value of m. Don't forget that m and n both are integers. m और n दोनों ही integers हैं. So m is an integer, fine. 3n भी obviously एक integer होगा. n plus 1 by 3, what do you think about this? n plus 1 by 3 को भी एक इंटीजर होना चाहिए, है कि नहीं? क्योंकि अगर लेफ्ट हैंड साइड एक इंटीजर है, अगर 3n एक इंटीजर है, तो इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर प्लस इंटीजर होना चाहिए. दैट मीन्स व्हाट आर वी कंक्लूडिंग? वी आर कंक्लूडिंग कि भाई n plus 1 by 3 must be an integer. Let's say k. n plus 1 by 3 must be an integer. Let's say k. So what is the value of n? n की वैल्यू क्या आ रही है भाई? n की वैल्यू आएगी 3k minus 1. n equals to 3k, देखो ना, n equals to 3k minus 1. n plus 1 should be divisible by 3. Yes, that's what I'm saying. n plus 1 by 3 must be an integer, and that means n should be equal to 3k minus 1. और अगर तुम n plus 1 by 3 को k यहां पर रख दोगे, so you can find m also in terms of k. But now it is not required. तुम्हें केवल इस n की वैल्यू को उठाकर, और जो तुम्हारा आंसर था n वाला, कौन सा आंसर था भाई? ये वाला. इस आंसर में तुम्हें इस n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है. Venkatesh, yes, I'll repeat with all possible explanations and reasoning why we are doing this. So let's go back to this equation. This is the equation where we are going to use the boundness of sin and cos. Both functions lie between minus 1 and 1. Difference of two functions, such two functions is 2. So clearly one of them is 1, another one is minus 1, but simultaneously, and that's why after solving these two, we have to take what? Intersection of both the solutions. अब जब तुम इनका intersection ले चलोगे, तो I told you the method where the general solutions of both the equations will be equated. इन दोनों को हमने equate किया, और equate करने के बाद solving बहुत आसान है, simple है. यहाँ पर हम पहुँच जाते हैं. When you reach to this equation, 10n plus 1 equals to 3m. जब इस इक्वेशन में जब हम पहुंचे, तो मैंने क्या कहा कि जो स्मॉलर कोएफिशिएंट है वेरिएबल का, उससे उस इक्वेशन को डिवाइड कर दो. जब तुम यहां पर 3 से डिवाइड करोगे, क्योंकि ये इंटीजर है, राइट हैंड साइड भी इंटीजर होनी चाहिए, मैंने इसीलिए स्मॉलर वैल्यू से डिवाइड किया है. अब तुम न्यूमरेटर में जो कोएफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, इस 10 को तुम ब्रेक कर सकते हो. ब्रेक भी ऐसा करो कि डिनोमिनेटर में जो 3 लिखा है उससे वो डिवाइड हो जाए. सो 9n प्लस n, मैंने 9 क्यों चूज किया? बिकॉज 9 ऑब्वियसली 3 से डिविजिबल था. सो 9n प्लस n प्लस 1 बाई 3, और 9n को मैंने जब 3 से डिवाइड किया, दिस बिकम्स 3n, और एक पार्ट यहाँ पर और बचा है जो कि है n प्लस 1 बाई 3. फिर मैंने कहा कि भाई अगर ये इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो फिर इसको भी तो इंटीजर होना पड़ेगा, बिकॉज इंटीजर इक्वल्स टू इंटीजर प्लस इंटीजर. तो n प्लस 1 बाई 3, इसको हमने एक इंटीजर अज्यूम कर लिया. n प्लस 1 बाई 3 को हमने k अज्यूम कर लिया. n प्लस, why we did not choose 6? What are you saying? Why we did not choose 6? Where is 6? 6 कहां पर है? We could also take 6 plus 4. ले ले भाई, 4 अभी भी 3 से बड़ा ही है ना. You are simply dividing 10 by 3.
जब तुम 10 को 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 4 बचता है क्या? सो रिमाइंडर इज 1, राइट? तो m इक्वल्स टू 3n प्लस n प्लस 1 by 3 and then n plus 1 by 3 must be an integer. n plus 1 by 3 must be an integer. तो n plus 1 by 3 को मैंने k एज्यूम कर लिया और यहां से n की वैल्यू 3k minus 1, n की वैल्यू 3k minus 1 आ गई। अब मैं ये कह रहा हूं कि इस n की वैल्यू को जो n वाला सोल्यूशन था ये वाला, इसमें जाकर सब्स्टिट्यूट कर दो। Substitute the value of n in this solution, simplify and tell me what is the value of x you are getting. It is only this, और उसके अलावा कुछ नहीं करना है। What are we getting? 2k pi minus pi by 2. Is everybody getting same? बताओ भाई। मैं यहाँ लिखता हूँ, स्पेस का थोड़ा कंस्ट्रेंट है, या फिर यहाँ लिख देते हैं चलो। तो अगर मैं सोल्यूशन में, सोल्यूशन हमारा क्या था भाई? 2n pi by 3 प्लस pi by 6 प्लस pi by 6। इस सोल्यूशन में अगर मैं n की वैल्यू 3k minus 1 डाल दूं, ये देखो 3k minus 1 by 3 into pi plus pi by 6। कम ऑन यार वेदांत, कॉपी पेस्ट मैं भी कर सकता हूँ तेरी तरह। वहाँ पे वो चैट बॉक्स में वो लिखे आ रहा है ना बोल्ड लेटर्स में, ये कॉपी पेस्ट मैं भी कर सकता हूँ। गधे, अगर मैं दोनों को n ले लिया होता तो मैंने ये इक्वेशन कैसे बनाई होती भाई? m और n के बीच में इक्वेशन आई तब तो हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। दोनों को n लिख दिया होता तब तो n की वैल्यू आ जाती गधे। सर बट वाई यू आर टेकिंग डिफरेंट वेरिएबल फॉर इंटरसेक्शन सर, दैट आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ये जो है तीसरी बार मैंने टाइप किया तूने, और वही मैं तुझे तब से समझा रहा हूं। सम वैल्यू ऑफ n फॉर सम वैल्यू ऑफ m, दीज टू विल बी इक्वल। सेम वैल्यू ऑफ n के लिए इक्वल नहीं हो सकते ना भाई। ये कैसा फालतू क्वेश्चन है? इसको सॉल्व करो भाई, इसको सॉल्व करो। यू विल गेट, देखो इसको स्प्लिट करोगे 3 3 कैंसिल होगा, दिस विल बिकम 2k पाई, यहाँ पे 2k पाई आएगा और ये हो जाएगा माइनस 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 6, यानी माइनस पाई बाई 2। एंड दिस इज द फाइनल आंसर। 2k पाई माइनस पाई बाई 2 इज योर फाइनल आंसर। ये आंसर आएगा। और तुम वेरीफाई कर सकते हो, तुम वेरीफाई कर सकते हो ये आंसर क्या है भाई? 2k पाई माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ? माइनस पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2। चेक करो क्या ये सही है? व्हाट इफ आई सब्स्टिट्यूट? अगर मैंने माइनस पाई बाई 2 मान लो यहां पर सब्स्टिट्यूट किया, रख के देखो माइनस पाई बाई 2, व्हाट इज साइन माइनस 3 पाई बाई 2? इट इज 1, बिकॉज साइन 3 पाई बाई 2 इज माइनस 1, तो माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस 1 आएगा। यहां पर सब्स्टिट्यूट कर देखो cos 10x में, इफ यू सब्स्टिट्यूट माइनस पाई बाई 2, cos माइनस 5 पाई, cos 5 पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, माइनस 1 आता है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है, तो उसको नोट करो और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, नोट कर लिया, गुड। प्रेस 3, दूसरा क्वेश्चन नोट कर लो और उसको फ्रीज कर दो 1 मिनट। हाँ, हटा दो यार, मिटा दो उसको। चलो भाई सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सेकेंड क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू रूट 2 इक्वल्स टू tan x प्लस कॉट एक्स। ट्राई दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। क्या करना होगा सोचो। बट tan और कॉट यहां पे लिखे हुए हैं, तो एक बात ध्यान रखना कि हम लोग tan और cot यहां पे लिखा हुआ है, तो हम लोग डोमेन का ध्यान रखने के बाद जो काम करें वो करें। डोमेन का ध्यान रखना जरूरी है। कन्वर्ट कर सकते हैं, यस, साइन कॉस में अगर तुम कन्वर्ट करना चाहो तो कर सकते हो।
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इक्वल्स टू 0 कैसे आ सकता है भाई? हाँ 1 आएगा, इक्वल्स टू 1 आएगा, 0 तो नहीं आ सकता। 1 ठीक है। अगर तुम लोग tan और cot को sin cos में कन्वर्ट कर रहे हो तो ठीक कर रहे हो, ट्राई करो। वन बाई रूट टू, यस रूट टू भी तो है, सही बात है। अगर तुम लोग tan और cot को sin cos में कन्वर्ट कर रहे हो तो इट्स ओके, सही कर रहे हो तुम। न्यूमरेटर में sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, डिनोमिनेटर में sin x इंटू कॉस एक्स। So before you cross multiply, remember sin x is not equal to 0 and cos x is also not equal to 0. Under this condition, इस कंडीशन के साथ हम लोग आगे बढ़ें, डोमेन लिखने के बाद ही आगे बढ़ें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। तो sin x प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 बाई रूट टू, ऐसी इक्वेशन हमारे सामने आनी चाहिए। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई? इसके बाद क्या किया जाए? साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट टू आ गया। एक्सपांड एंड मेक इट इक्वल टू 0, क्या फायदा हुआ? क्या एक्सपांड? मल्टीप्लाई करोगे अंदर, करो। Sin x plus cos x equals to v. Yes, why not? We can use it. Sin x plus cos x को v रखना, we can use, yes. साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू अगर v रखोगे तो याद है ना, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स भी मिल जाता है इन टर्म्स ऑफ v। व्हाट अबाउट अदर्स भाई? बाकी लोग क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहे हैं? क्या उनको कुछ हो ही नहीं रहा क्या उनसे? बाकी लोगों की हालत है भाई? आदित्य, हर्ष, निधि, नैना, कहाँ हो सब? उमर, ऋषि, प्रसून, स्मिथ, किसी और? क्या हुआ भाई, तुम लोग कहाँ हो? v क्यूब माइनस वी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। अच्छा ओके, तो क्यूबिक इक्वेशन आती है, बिल्कुल सही बात है। एक क्यूबिक इक्वेशन हमारे सामने आती है, बात तो सही है। क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड एक ही है क्या? क्यूबिक को सॉल्व करने का मेथड क्या है हमारे पास? सब्स्टिट्यूशन, यस। थ्री प्रेस करना, अभी रहने दो, फ्रीज रहने दो। ये सोल्यूशन सब लोग नोट कर लो भैया, किसी का अगर रह गया हो ये सोल्यूशन नोट कर लेना। एंड डोंट वरी, अभी मैं इस पे एक दो और एग्जांपल्स कराऊंगा तुम्हें, तुम चिंता मत करो। थोड़ा सा बस क्वेश्चंस जो तुम पूछते हो, स्पेशली वेदांत जे, तो क्वेश्चन जो पूछते हो, क्वेश्चन में थोड़ा सेंस लाओ अपने क्वेश्चंस में, कॉमन सेंस होना चाहिए, राइट? कहते फालतू में कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। और दूसरा, आद्विक, you cannot expect me to repeat everything what I have told 5 minutes before, 10 minutes before. I cannot do that. It is not possible for me to do it every time. तो ये दो चीज़ें थोड़ा सा इरिटेटिंग हैं, इसको ध्यान दो भाई तुम लोग, बिकॉज एक दो बार ठीक है, वो हर लेक्चर में होता है कि कनेक्शन खत्म हो गया, कनेक्शन गया मेरा और फिर से रिपीट करो, जितना लिखा है फिर रिपीट करो, ये नहीं हो पाएगा।
वी कैन नॉट डू इट एवरी टाइम यार, नहीं हो पाएगा, एक दो बार चलता है, हर बार नहीं हो पाएगा। और वेदांत जी तुम यार सुधर जाओ, तुम्हारा बहुत ज़्यादा मतलब मैं हर तरफ सुन रहा हूँ जो है उसको थोड़ा सा करेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड है, क्योंकि ये इतना इरिटेटिंग है कि तुम 2 इंटू 2 6 लेके बैठते हो और पूछते हो मेरी गलती कहाँ पर है मुझे बताओ। तुम 2 + 3 को 7 लिख के बैठे हुए हो और तुम पूछते हो मेरी गलती मुझे दिखाओ। मैं अपनी गलती जो है खुद नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, तुम मुझे बताओ कहाँ पर है। अबे कोई बहुत बड़ा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन हो किसी स्टेप में अटके हो, बता सकते हैं। ये क्या बात हुई कि तुमने एक सिंपल से कॉमन मिस्टेक की हुई है, एक ऐसी मिस्टेक की हुई है तुम्हें नहीं करनी चाहिए, तुम पूछ रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हें कोई और आके बताएगा कि इसका सोल्यूशन मुझे बताओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा है, क्योंकि मैं 2 इंटू 3 7 लिख रहा हूँ। तो इन चीज़ों को चेंज करो यार, 2-3 महीने तुम्हें हो गए यहाँ पे आए हुए। और तीसरे वो लोग हैं जो रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं। वो यहाँ पे आते हैं, मैं उनसे साइन सी प्लस साइन डी पूछता हूँ, बता नहीं पाते हैं, वो हमेशा भूल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या तो इन तीसरे लोगों से, जो घर बैठ के लोग अपने पेरेंट्स को बेवकूफ़ बना रहे हो। आज के नोट्स जो है ना, मैं मंगाऊंगा 5 लोगों से रैंडमली, आज जो हमने लिखा है, इनफैक्ट इस पूरे चैप्टर के नोट्स, तो रेडी रहना, 5 लोगों को व्हाट्सएप करने हैं मुझे। चलो, sin x प्लस कॉस एक्स इंटू √2, तो ये हो गया sin x प्लस कॉस एक्स इंटू √2, और यहाँ पे आ गया sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन sin x इंटू कॉस एक्स। हाँ, प्ले कर दो। यस, और तुमने इसको सिंप्लीफाई करने के बाद लिखा होगा sin x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। स्क्रीन इज स्टिल, नहीं, अभी तो स्क्रीन फ्रीज नहीं है ना। सेंसिबल वैल्यू, विल सी साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हमने जैसे हम करते हैं वी अज्यूम किया, और जब तुम स्क्वायरिंग करते हो तो अब तो तुम्हें याद हो गया होगा कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की वैल्यू आती है वी स्क्वायर माइनस 1/2। तो वी स्क्वायर माइनस 1/2 यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे और वी यहां पे सब्स्टिट्यूट करोगे, ये सब्स्टिट्यूशन हम लोग करते हैं, तो यहां पे आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू वी इक्वल्स टू 1 अपॉन √2। और इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो तो v इंटू वी स्क्वायर, दिस विल बिकम v क्यूब माइनस v, और देखो 2 यहां ले जाओगे 2/√2 √2 हो जाएगा। स्ट्रेंथ माइनस √2 इक्वल्स टू 0, डजंट मैटर क्या फर्क पड़ता है। v क्यूब माइनस v माइनस √2 इक्वल्स टू 0। नाउ there should be a particular value of v which will satisfy this, otherwise अगर हमको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी हिडन ट्रायल से, तो वी आर नॉट यूज्ड टू ऑफ सॉल्विंग क्यूबिक इक्वेशंस। हालांकि मेथड है बट अभी तक हमने इसको पढ़ा नहीं है। √2 चेक, √2 सेटिस्फाई करता है क्या उसको? इज √2 अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन? क्या √2 उसको सेटिस्फाई कर रहा है? चेक, यस। तो √2 अगर बना रखते हैं v की वैल्यू, √2 क्यूब इज 2√2 एंड √2 √2 2√2 कैंसिल होता है, यस। सो √2 इज वन ऑफ द रूट्स। और तुम बताया कि जब जैसे तुमको एक रूट मिलती है, यू कैन फाइंड द अदर रूट बाय फैक्टराइजेशन। चलो फैक्टराइज करो, यूज फैक्टराइजेशन। v माइनस √2 से इसको डिवाइड करते हैं और देखो यहां पर क्या मिलता है। चलो लिखो, find the other factor, find the other factor।
हाँ भाई, क्या आ रहा है दूसरा फैक्टर? सेकेंड फैक्टर क्या आ रहा है बताओ? इफ यू डिवाइड दिस क्यूबिक बाय v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1, ओके, देखें भाई, सो डू वी गेट v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1? करो, आर वी गेटिंग v स्क्वायर माइनस 2v प्लस 1? देखो विधान का तो ये आ रहा है, we cannot, root 2 is there, we cannot. What are you saying? We cannot have that? गलत है ये, चेक कर लेते भाई। हाँ सही तो नहीं लग रहा है, कुछ तो मिस्टेक है इसमें, बिकॉज v क्यूब आ रहा है रूट 2v स्क्वायर और यहां से आ रहा है माइनस 2v स्क्वायर। नो, गलत है भैया। तो आई थिंक यहां पर रूट 2 आएगा शायद, चेक करो एक बार, रूट 2v स्क्वायर और प्लस रूट 2v आएगा आई थिंक, चेक करो। बिकॉज अगर ये रूट 2 होता प्लस रूट 2, आई थिंक ये ऐसा आना चाहिए, आई थिंक। यस व्हाट्सअप नैना, यस श्रवनी, श्रवनी इज सेइंग माइनस रूट 2v। अच्छा, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है? अभी श्री बोल रहा है प्लस आ रहा है। अच्छा, माइनस 2v प्लस v माइनस v, हाँ अभी सही है, ये प्लस रूट 2v आएगा श्रवनी। यस प्राप्ति, गुड। सो ये जो क्वाड्रेटिक है इसकी रूट्स हम निकालें इसके पहले इसका एक बार डिस्क्रिमिनेंट देखो क्या आ रहा है। क्या है इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट? देखो रूट 2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 माइनस 2, डिस्क्रिमिनेंट इसका नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी रूट्स तो अनरियल है, ये रूट्स हमको लेनी नहीं, करेक्ट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली वन सोल्यूशन एंड दैट इज v इक्वल्स टू रूट 2। सो v इक्वल्स टू रूट 2, v इक्वल्स टू रूट 2 का मतलब इनफैक्ट ये क्वेश्चन तो हमारा टाइप 4 वाला, टाइप 3 वाला बन गया अभी, क्योंकि यहां पर अब आ गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल्स टू रूट 2। ये क्वेश्चन बाय मिस्टेक यहां पर आ गया। एनीवेज इसको सॉल्व कर लेते हैं, फाइनली आंसर लिख लेते हैं। क्या हो गया यहाँ पे? रूट 2 से डिवाइड और ये हो गया क्या बन जाता है? कॉस एक्स माइनस पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय रूट 2, यस, and you will get cos x minus pi by 4 equals to 1 which is cos 0। एक्सट्रीम वैल्यू है, तुम्हें याद ही होगा। बाउंडनेस वाली बात ठीक है, लेकिन इसमें कोई इंटरसेक्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ी हमको। सो दिस इज सिंपली 2n पाई प्लस माइनस 0। आदित्य का आंसर यस, आंसर इज x इक्वल्स टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4। तो ये आई थिंक टाइप 3 ही हो गया हमारे लिए। अच्छा एक बात और जो मैंने कहा था, हालांकि हमें दिक्कत नहीं आएगी, साइन एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड कॉस एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0। साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही 0 नहीं होनी चाहिए, ये चीज हमको चेक करनी चाहिए। ऑब्वियसली इस सोल्यूशन में तुम देख सकते हो कि साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों ही 0 नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पाई बाई 4 45 डिग्रीज पर साइन और कॉस 0 नहीं होते हैं, तो इट इज एक्सेप्टेबल। सो आंसर इज 2n pi plus pi by 4 as in denominator, yes, because sin x and cos x are in denominator, or you can see tan x and cot x लिखे हुए हैं, so we cannot accept those values where tan and cot are not defined. What are those values? Odd multiples of pi by 2, even multiples of pi by 2, that means multiples of pi। तो ये क्वेश्चन जो है वो टाइप 5 में एक्चुअली आया ही नहीं, मतलब वहां तक मुझे जाने की जरूरत नहीं पड़ी। बट वेट, एक क्वेश्चन सिमिलर हमको करना जरूरी है, जहां पर हम इंटरसेक्शन लेंगे एक बार फिर, है ना। सो लेट्स ट्राई वन मोर क्वेश्चन। साइन 3x इंटू कॉस साइन 3x इंटू कॉस 10x इक्वल्स टू 1। sin 3x into cos 10x equals to 1।
What is special about this equation? Tell me. Do you think there is something special about this equation? क्या कुछ स्पेशल दिख रहा है तुमको इस इक्वेशन में? Sin x equal to 1. Both must be plus 1 or minus 1 वेदांत. Very nice. Because sin भी एक फ्रैक्शन है, cos भी एक फ्रैक्शन है, और दो फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन 1 कब आ सकता है भाई? जब दोनों ही 1 हो या दोनों ही -1 हो. Yes, both are 1 or both are -1. But then we have to form two cases. Both are 1 or both are -1. If you don't want to form two cases, I'll suggest to multiply by 2. And why I am doing this? तो 2 से मल्टीप्लाई करने का रीजन क्या होगा वो तो तुम्हें अब तक रियलाइज हो ही गया होगा. बिकॉज वी आर गोइंग टू अप्लाई प्रोडक्ट टू सम. यस, तो क्या होगा ये प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला? 2 sin a cos b is actually sin 13x and plus sin a minus b. sin a minus b क्या आएगा भाई? sin 3x minus 10x. तो ये -7x हो जाएगा. 2 sin a cos b is sin a plus b plus sin a minus b. तुम देख सकते हो एक बार फिर कि यहां पर इक्वेशन जो हमको मिल रही है उस इक्वेशन में दोनों टर्म्स साइन की हैं और उनका दोनों टर्म्स का जो डिफरेंस है वो 2 आ रहा है. नाउ वी हैव एन इक्वेशन which can have only one solution, one type of solution, and that is what? Sin 13x should be equal to 1. Sin 13x 1 होना चाहिए and simultaneously sin 7x should be equal to -1. तो sin 7x -1 होना चाहिए और sin 13x +1 होना चाहिए. So why don't you try? एक बार तुम लोग खुद ट्राई करो. वही पार्ट तुम्हें रिपीट करना है जो मैंने किया था. क्या किया था भाई? जनरल सॉल्यूशंस लिखने के बाद इक्वेट करना है. क्या होगा? sin 13x इक्वल्स टू 1 का जनरल सोल्यूशन देखो. sin 13x इक्वल्स टू 1 जनरल सोल्यूशन. रिमेंबर ये एक्सट्रीम केस है तो हम सीधा लिखेंगे 13x equals to 2n pi plus pi by 2. right? तो यहां से आ जाएगा x equals to 2n pi by 13 plus pi by 26. पहला सॉल्यूशन. और प्लस माइनस नहीं भाई, ओनली प्लस. and sin 7x equals to -1. sin 7x equals to -1 यानी कि sin -pi/2 -pi/2 राइट. तो यहां पे क्या होगा? 7x equals to 2m. यहां पे n लेना है, यहां पर m लेना है, जिससे हम बाद में इसको इक्वेट कर पाए. 2m pi minus pi/2. So what is the value of x? x is 2m pi/7 minus pi/14. एक बार फिर m और n लेने का पर्पस ये है कि हमारे पास दोनों डिफरेंट सेट्स हैं. वी हैव 2 डिफरेंट सेट्स एंड वी वांट टू फाइंड अ कॉमन सोल्यूशन. तो कॉमन सोल्यूशन दोनों में अगर हम n डाल देंगे तो हमें सेम सोल्यूशन मिले, जरूरी तो है ना. इसलिए हमने एक जगह पर n और दूसरी जगह पर m लिया हुआ है, जिससे हम इसको सेपरेट लिखेंगे, उसको सेपरेट लिखेंगे, फिर कॉमन सोल्यूशंस निकालेंगे. अब चलो इसको इक्वेट करते हैं भाई. इक्वेट करो और मुझे बताओ कि तुम्हें n और m में इक्वेशन क्या मिलती है. ये तो सही करो यार, इसमें मिस्टेक होने का चांस नहीं है हमारे पास. तो अगर तुम इसको इक्वेट करोगे पाई कैंसिल होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा कुछ. टेल मी व्हाट इज द फाइनल इक्वेशन यू आर गेटिंग. आई थिंक 4n plus 1 by 26 equals to 4m minus 1 by 14. Are we getting this? ये तो मिलता है. और 13 और ये 7. So cross multiply and tell me
व्हाट इक्वेशन डू यू गेट? जल्दी बताओ क्या आ रही है? सिंप्लीफाई करने के बाद m और n में इक्वेशन क्या आती है? जल्दी बताओ। अरे आप जल्दी करो, इतना टाइम क्यों लगता है यार? क्रॉस मल्टीप्लाई करने में तुम लोग को इतना टाइम लग जाता है? 52m, हाँ सही है। 27 क्यों भाई? 27 क्यों? 7 इंटू 4 27 कब से हो गया? हमारे टाइम में तो 28 होगा, अभी 27 शुरू हो गया क्या? क्या करते हो यार? 28n plus 7 equals to 52m minus 13। मतलब ये भी मैं करूं, 52m minus 28n equals to 20। यस, 2 से डिवाइड कर दो, यू मस्ट गेट 26m। 26m equals to इनफैक्ट 4 से डिवाइड हो रहा है भाई, ये तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, 13 हो जाएगा। 4 से हो रहा है ना, 13m। 13m equals to what? 7n plus 5, करेक्ट। राइट। अब ये रही हमारी डायफेंटाइन इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें इंटीजर सॉल्यूशंस हमको निकालने हैं। और इंटीजर सॉल्यूशंस निकालने का जो तरीका मैंने तुम्हें बताया है, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम सबसे पहले जो स्मॉलर कोएफिशिएंट दिख रहा है उससे डिवाइड करते हैं। कौन सा है स्मॉलर कोएफिशिएंट? देखो 7 छोटा है, राइट? 7 से डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग बाय 7। सो व्हाट डू यू गेट? 5 को तो मैं शिफ्ट कर रहा हूं, n equals to 13m minus 5 divided by 7. Yes, so dividing the whole equation by 7. Now, as I did, पहले हमने क्या किया था? इस 13 को इस तरह ब्रेक करो कि 7 से डिवाइड हो जाए। क्लोजेस्ट मल्टीपल ऑफ 7 is 14. Yes, it is 14. So we can write this as 14m minus m minus 5 divided by 7. The reason is कि हम इसको इंटीजर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां से को n की वैल्यू क्या आती है? n की वैल्यू आएगी 2m minus, you can take minus common, m plus 5 by 7. So this is integer, this is integer, this also, this must be an integer, right? m plus 5 by 7 must be an integer. So let m plus 5 by 7 equals to k, where k is any integer. And from here we will get the corresponding value of m. m की वैल्यू क्या आएगी भाई? m की वैल्यू आएगी 7k minus 5। और अब इस m की वैल्यू को उठाकर डाल देंगे हम m वाले सॉल्यूशन में, जो कि ये सॉल्यूशन था, ये वाला। सो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ m, 7k minus 5 यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो और बताओ मुझे आंसर क्या मिलता है। फाइनली आंसर क्या मिलेगा सॉल्व करके मुझे बताओ। 7k minus 5 यहां पर तुम्हें रखना है, 7k minus 5। तो 7 के रखेंगे तो ऑब्वियसली 2k पाई तो आएगा, 2k पाई, और -5, तो -5 रखोगे तो -10 पाई बाय 7, यानी माइनस कितना आ रहा भाई? 20 पाई बाय 14, 28k माइनस 28k, क्या लिख रहे हो ये? 28। और भाई 7k minus 5 यहां पे डालना है, m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो ना। 28 कहां से आ रहा है वेदांत? 7k minus 5 तो -10 पाई बाय 7 minus पाई बाय 14
-21 पाई बाय 14 -3 पाई बाय 2, यस, ये है हमारा फाइनल आंसर।